Welcome back, dear learners. Now we are going to start our class, that is nutrition in animals. We already discussed about nutrition in animal, that is holozoic mode of nutrition. In this mode of nutrition, holozoic, that means several steps involved, like firstly, ingestion of the food, in which a solid food substance ingested, then their digestion in a proper digestive system, or in case of the unicellular animal like the protozoans, a solid food ingested by the unicellular organism in their cell body, and then second step, that is digestion. तो ingest करते हैं, then digest करते हैं, then their absorption, or then after the assimilation, and after this process or the steps, the undigested food or waste product egested from the body. So these are the several steps involved in this mode of nutrition, that is holozoic mode of nutrition. So here next topic, that is nutrition in unicellular animal, that is protozoa or the amoeba. अमीबाइड सेल में किस तरीके से न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया है वह पूरी होती है, इसे हम लोगों ने देखना है, जो आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है. तो जो हमें पता है, अमीबाइड सेल is or the amoeba unicellular organism, that is unicellular and irregular in their shape. इसका जो शेप होगा वो irregular शेप होगा due to its flexible plasma membrane and its moving protoplasm. This is the property and the key feature or character of the amoeboid cell, that is irregular in shape due to its flexible plasma membrane. This is plasma membrane, and due to its moving protoplasm. Due to this feature, amoeboid cell can move and can catch its food. So how do the amoeboid cell, any kind of the amoeba, ingest their food? तो जो अमीबाइड सेल है वो किस तरीके से ये भोजन को इंजेस्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखना है. So amoeboid cell like this, a solid food substance, it may be bacteria or the paramecium, कुछ भी हो सकते हैं. तो amoeboid cell क्या करते हैं? Further amoeboid cell move towards the food substance or any food substance come in their contact. इसके कांटेक्ट में आते हैं. Then further amoeboid cell or its protoplasm start moving and surround the food substance like this with the help of moving protoplasm and forming like this finger-like structure called pseudopodia. This finger-like structure called pseudopodia, and further engulf the food substance. और ये क्या करते हैं? इस फूड सब्सटेंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं like this. And further from this region its membrane pinch off, यहां से ये pinch off हो जाते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं, and forming a food vacuole. ये एक food vacuole का निर्माण कर लेता है. अब क्या हुआ? This food vacuole inside the cell or its protoplasm, इस प्रोटोप्लाज्म के ये भीतर में आ जाते हैं. Now here its डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस, यहाँ पे फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होने लगते हैं. तो इस तरीके से ये भोजन को प्राप्त करता है. तो दिस प्रोसेस और फिनोमेनन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा नोन एज द इंडोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस कॉल्ड इंडोसाइटोसिस. तो यहाँ पे जो सॉलिड फूड सब्सटेंस है
उसको अंतर्ग्रहित करने का, भोजन करने का जो तरीका है, उस तरीका को हम लोग बोलते हैं कि इंडोसाइटोसिस है। तो इंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अमीबॉइड सेल और अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इंडोसाइटोसिस कहे जाते हैं। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन भी आता है, कई बच्चों ने इस बारे में कहा भी है कि फेगोसाइटोसिस भी एक टर्म आता है, तो इंडोसाइटोसिस सही होगा या फेगोसाइटोसिस सही होगा। तो ऐसा है कि इंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों सही हैं। कई किताबों में आपने देखा होगा कि फेगोसाइटोसिस लिखे हुए होते हैं, कई किताबों में आपने देखा होगा इंडोसाइटोसिस लिखे हुए होते हैं, तो दोनों अपने जगह पे सही है। वास्तव में होता क्या है, फेगोसाइटोसिस भी आप उसको बोल सकते हैं। एक्चुअली इंडोसाइटोसिस में दो टाइप हो जाते हैं, इंडोसाइटोसिस का दो टाइप हो जाता है, जिसमें एक हुआ आपका फेगोसाइटोसिस और दूसरा आपका हो जाता है पिनोसाइटोसिस। तो दोनों सही है अपने जगह पे। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होते हैं, ऑब्टेनिंग ऑफ लार्ज फूड और सॉलिड सबस्टेंस बाय द अमीबॉइड सेल। जब अमीबॉइड सेल के द्वारा लार्ज पार्टिकल को या सॉलिड पार्टिकल को ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है, तो ये फेगोसाइटोसिस के कैटेगरी में आ जाता है। और जब टीनी पार्टिकल्स को या फिर लिक्विडस या फ्लूइड पार्टिकल को जब इसके द्वारा लिया जाता है बाय दिस सेम प्रोसेस बट टीनी और दी फ्लूइड पार्टिकल, तो उस तरीके के पार्टिकल को जब इसी प्रोसेस के द्वारा जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिंच ऑफ होता है, तो उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और दोनों को एक साथ में हम लोग इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। सो एक्चुअली इन केस ऑफ अमीबा देयर इज फेगोसाइटोसिस टेक प्लेस। सो फेगोसाइटोसिस इज मोर सुटेबल देन द इंडोसाइटोसिस, लेकिन इंडोसाइटोसिस भी अपनी जगह पे सही है क्योंकि इसी का ये सब पार्ट हुआ। तो आप जो लिख सकते हैं आइदर द फेगोसाइटोसिस और द इंडोसाइटोसिस, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये प्रोसेस पाए जाते हैं इंडोसाइटोसिस का या फेगोसाइटोसिस का। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचा, वो वेस्ट मटेरियल फिर से यहाँ पे कैविटी ये बनाएगा और उस कैविटी से दिस वेस्ट सबस्टेंस digested by the process of exocytosis, endocytosis then the exocytosis। जो कुछ भी रफ हो गए, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें अमीबा इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन कर पाता है। तो ये आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस तरीके से न्यूट्रिशन होते हैं।